Welcome to Ultimate Biology. Today we are going to learn this important topic, pregnancy and embryonic development. In the previous video we have seen how the implantation takes place in the female body in the uterus. Just little bit we will see again. Here in the ampullary isthmus junction, fertilization takes place. This one, that is the ampullary isthmus junction. Here fertilization takes place. After fertilization, 30 hours after fertilization, like these are two blastomere formation takes place. Again they divide and forms a 4 like this, a blastophore. After 60 hours, then these are 4 blastomeres again divide by mitosis cell division and forms 8 like this, a blastomere. After 72 hours after fertilization, we call it as a morula. Then these 8 cell, these morula again divide and forms like this a 16 cell structure. Within the zona pellucida, we call it as this both structure, we call it as a morula. Then this structure comes here in this uterus and absorb the uterine fluid, due to which this one cell differentiated into like this one layer, we call it as a trophoblast, and second cell, due to these fluid which enter inside this structure, some cell they shift towards one side, that structure we call it as this one we call it as embryo knob, this is a cell, or we call it as a inner cell mass. Then this structure move on the endometrial wall, and on the 6th day here they forms 8 and hole, and this structure get attached to the endometrial wall, and then within 10 to 12 days after fertilization, this endometrial wall divide and redivide and embed this structure in this wall, we call it as endometrial wall. Then that mechanism we call it as a pregnancy. Then we call it as a pregnancy, or this process we call it as implantation. As soon as implantation takes place in some female, in not all female but in some female, implantation bleeding takes place. This implantation bleeding, it is typically defined as a small amount of light spotting or bleeding that occurs about 10 to 14 days after conception. After conception, at 10 to 14 days after conception, a small amount of light spotting or bleeding that occurs, it is a normal. Implantation bleeding is thought to be happen when the fertilized egg attaches to the lining of the uterus. In some women, such a type of symptoms appears, we call it as implantation bleeding. It is also an indication of pregnancy. After this implantation bleeding, this structure get completely embedded in this wall. That wall we call it as endometrial wall. Now this structure will get completely embedded, means that this endometrial wall divide and redivide and forms like this a complete one wall surrounds this structure. Means this structure get completely embedded in this endometrial wall. When blood capillaries and nerve endings formation takes place, and blood capillaries also forms like this mass here, this structure differentiated into like this trophoblast cell,
which absorb the fluid from the uterus, we call it as, which filled with the fluid. This is a structure, we call it as a blastocoel. And this is a cell which is shifted towards one side, we call it as an inner cell mass. This is after implantation. Now the embryonic development process, it gets a start. First of all, the cells which are present here, some cells covering the free surface of these embryonic knob, means the cells which are present here to the free surface of this embryonic knob differentiate. They become flat, they become like this, a flat, and forms the first endodermal layer or endodermal cell. It differentiates into endodermis. This is a flat cell on both sides, divide and redivides. Some cells covering the free surface of this embryonic knob differentiate. They become flat and forms the first endodermal cell, which divide and redivide from both sides, and ultimately they forms here one cavity. We call it as a primitive gut, or we call it as a archenteron. This cavity we call it as a gastrocele cavity. This cavity we call it as a gastrocele cavity, like this. Then the embryonic, this one. Then the embryonic or the embryonal, this knob is a stretch, and its cells become like this, a column-like. Stretch and it become like this, a column-like, called this one known as embryonic disc. In this way, the embryonic disc formation takes place here. By this cell enlarged like this and becomes like this, a column-like, and this a disc which is formed. That disc we call it as embryonic disc. Now see here. Here it shows this structure. It shows the amniotic cavity. How this amniotic cavity formation takes place, we will see in the next slide. This embryonic disc which is there, or this cell which is there, this cell, they again divide and they differentiate. They again divide and they differentiate. See here. See the embryonic stages step by step. This one, that is this one blastula. Then this one inner cell mass, this one trophoblast cell, like this, and here the cells. These cells get differentiated and it forms endodermal like this cell. And now here next amniotic, that cavity formation takes place in the next stage. And here the inner mass cell which is present here in the disc. That cell, see here, that cell, how they differentiate? They differentiate like this, and they differentiate like this. Means from both sides they differentiate and forms another germinal layer. First the endoderm formation takes place, next mesoderm formation takes place. By this movement of the cell move like this and like this. Next that layer formation takes place, surrounds the endoderm. That layer we call it as mesoderm. Means first endoderm formation takes place, then mesoderm formation takes place, and lastly ectoderm formation takes place. From that this cell or this structure we call it as embryonic disc. How this structure formation takes place? See here. This cell divide and forms the endoderm, and after that this one is the endoderm. After that these again the embryonic disc cell divide and then they forms like this. Next derm, that derm we call it as mesoderm. And in this formation of this mesoderm, here a small like this structure formation takes place. That structure we call it as chorion. Chorion protect embryo, and from this chorion placenta formation takes place. How the placenta formation takes place?
What is the function of this placenta? Which hormones released by this placenta? We will see. Now see here. First is endoderm, next this mesoderm formation takes place, and from this embryonic this disc, again the cell differentiate and forms next layer, we call it as ectoderm, and here one cavity formation takes place. That cavity we call it as amnion cavity, in which a fluid is present. That fluid we call it as amniotic fluid. From this region, that is the gastrocele, that a yolk sac formation takes place. ह्यूमन का जो एम्ब्रियो है उसमें यॉल्क की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज वी आर अलेसिथल. मुर्गी का जो अंडा होता है उसके अंदर पीले रंग का जो स्ट्रक्चर होता है, दैट इज अ यॉल्क. जब अंडे के अंदर दैट एम्ब्रियो फॉर्मेशन टेक्स प्लेस और दैट चिकन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, दैट यॉल्क प्रोवाइड फूड मटेरियल फॉर दैट थ्री जर्मिनल लेयर, ectoderm, mesoderm and endoderm, because these structure develop outside the body. But in case of a human, that a small baby, it develop inside the uterus. So there is no need of these yolk, because in case of a human embryo, umbilical cord formation takes place, and one placenta also formation takes place, which provide food material and all material from mother to the fetus, like this. So due to which in case of human, yolk sac is there, but in that yolk sac only fluid is present, yolk is not present, because we are alecythal, like this. Now see, when the ectoderm, mesoderm and endoderm, these are three germinal layer forms, rearrange, we call it as a gastrulation. This anatois is responsible for the formation of umbilical arteries and veins, like this. Now see here how these three germinal layer formation takes place. This one we call it as embryonic disc. From this embryonic disc, this endoderm formation takes place. Then after endoderm, then a mesoderm formation takes place. Then from this embryonic disc, again this ectoderm formation takes place. All these three germinal layer, they arrange like this. This one we call it as endoderm. This is a middle, we call it as a mesoderm, and this outer we call it as a ectoderm. Ectoderm, mesoderm and endoderm. This one is the yolk sac, in which yolk is absent, only fluid is present, because there is no need of this yolk in case of a human embryo. In this way, the three germinal layers, they arrange and differentiated into endoderm, mesoderm and ectoderm. And from these three germinal layers, all our body organs formation takes place. Now when this embryo formation takes place and when this embryo present in the uterus, this embryo get protected by these capsule-like structure. We call it as a decidua, these are capsularis. This one innermost, this one we call it as a decidua, these are capsularis. Beneath this decidua capsularis, this one is a middle portion, middle layer which is there. We call it as a decidua bacillus. This one is the decidua bacillus, this one. And third one, this one, that is the parietalis. Means this is a parietal, this one, this is a layer, outermost this one of uterus. We call it as a decidua, that is a parietalis. Now we know that uterus consists of three walls. One is the perimetrium, then myometrium, and third one is the endometrium. Perimetrium is there, myometrium is also there. Endometrial wall which is there, that endometrial wall, after these fetus formation takes place, differentiate into these decidua capsularis, decidua these bacillus, and this one, that is a decidua, that is a parietalis. This one, and inside these three wall, this small baby, it get protected. Now see here, pregnancy and embryonic development after implantation. After here implantation,
when the structure get implanted. Finger-like projection appear on the trophoblast called chorionic villi. Like this, a finger-like structure get formation takes place on the trophoblast called chorionic villi, which are surrounded by the uterine tissue and maternal blood. Surrounded by this uterine tissue and that maternal blood, the chorionic villi and uterine tissue become interdigitate with each other and jointly form a structural and functional unit between these developing embryo that is a fetus and these are maternal body, that structure we call it as placenta. Here in between these fetus and these uterus, here like this structure formation takes place. These are disc-like structure formation takes place, that structure we call it as placenta. This one. See here, this is a placenta. डिलीवरी होने के बाद ऐसा ये प्लासेंटा यूट्रस में से बाहर आता है. एंड दिस प्लासेंटा इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस प्लासेंटा, ये प्लासेंटा जो है ये छोटा जो बेबी है उसको फूड मटेरियल, ऑक्सीजन, जो भी माँ जो भी खाना खाएगी आफ्टर डाइजेशन, माँ के ब्लड में जो भी डाइजेस्टेड फूड मटेरियल आएगा, दैट डाइजेस्टेड फूड मटेरियल transported from this placenta into this umbilical cord, and from that umbilical cord, ये umbilical cord में से ये पूरा मटेरियल जो है जो भी माँ यूटिलाइज करेगी वो स्मॉल बेबी को मिलता रहेगा. प्लासेंटा इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट एक्ट एज ए endocrine gland also. Placenta is very important. We will see here. Now, like this, umbilical cord formation takes place like this, and here placenta formation takes place. ऐसा placenta develop होता है. From that placenta, ये umbilical cord ऐसे develops होता है. This one. This umbilical cord and placenta, it is the connecting link between the fetus and the mother. And it play a very important role in the development of these embryo or development of that fetus. Now see here, placenta formation takes place. This one, that is a placenta formation takes place here. And in this placenta, these structure we call it as arteries and veins are present. We will see the placenta facilitate the supply of oxygen and nutrients to the embryo. Means from through this placenta, oxygen and nutrient get passes up to the embryo, and also removal of carbon dioxide and excretory waste material produced by the embryo. यानी एक ऐसे प्लासेंटा एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहाँ से जो स्मॉल बेबी है उसको फूड मटेरियल सप्लाई होता है, ऑक्सीजन सप्लाई होता है. मदर जो है like this breathe करती है, रेस्पायर करती है. द ऑक्सीजन विच इनहेल बाय दैट मदर कम्स इन द ब्लड. उनके मदर के पूरे ब्लड में ये ऑक्सीजन जो है सर्कुलेट होता है. जैसे हम ऑक्सीजन बाहर से अंदर लेते हैं, like this oxygen comes in the lungs. From the lung this oxygen get diffused into the blood. Now the blood it become oxygenated. जो खून है वो oxygenated हो जाता है और ये सर्कुलेट होता है throughout the body. और सर्कुलेट होते होते जो स्मॉल बेबी है डूम के अंदर, वहाँ प्लासेंटा में से ये ऑक्सीजन जो है गेट डिफ्यूज इनटू that veins, and the veins which are present in that we call it as umbilical cord, नाड़ जिसको बोलते हैं हम, वहाँ से veins जो है ये ऑक्सीजन को कैरी करती है into the small fetus, into the small that baby. यानी माँ जैसी रेस्पायर करती है वैसा ही बेबी डूम के अंदर वो प्रोटेक्टेड जो यूट्रस है फ्लूइड है उसके अंदर वो रेस्पायर करता है. और पूरा रेस्पिरेशन होने के बाद जो भी फूड मटेरियल जो है पूरा यूटिलाइज होने के बाद जो फिटस है उसके बॉडी के अंदर जो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल बनता है या कार्बन डाइऑक्साइड उसके टिश्यू में जो भी बनता है, ऑल दैट मटेरियल अगेन फ्रॉम दैट फिटस कलेक्टेड बाय आर्टरी, और वो आर्टरी जो है वापस प्लासेंटा में से मदर के ब्लड में जो है उसको पोर करती है. लाइक दिस मीन्स दिस स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इट ऑल्सो रिमूव of carbon dioxide and excretory waste material
produced by the embryo. The placenta is connected to the embryo through an umbilical cord which help in the transport of substances to and from the embryo. यानी ये जो प्लासेंटा जो यहाँ बनेगा डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, ये प्लासेंटा से जो अम्बिलिकल कॉर्ड बाहर निकलती है, अम्बिलिकल कॉर्ड वी कॉल इट एज उसको हम नाड़ बोलते हैं, उसको अम्बिलिकल कॉर्ड. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्लासेंटा कंटेन 2 आर्टरीज एंड 1 वेन्स. ये जो प्लासेंटा होता है इसके अंदर 2 आर्टरीज होती है और एक ही वेन होती है. ये नीले कलर की जो दिखाई गई है दैट इज अ वेन, और ये रेड कलर की जो दिखाई गई है दैट इज अ आर्टरी. आर्टरी 2 होती है और वेन्स एक ही होती है. फंक्शन ऑफ अम्बिलिकल वेन, ये जो नीले कलर की जो यहाँ पे दिखाई गई है दिस वन दैट इज अम्बिलिकल वेन, सप्लाइज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम मदर टू फीटस. यानी माँ से जो स्मॉल बेबी है डूम के अंदर उसको ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम जो है ये करती है. विच वन, ये नीले रंग की जो दिखाई गई है दैट इज द वेन, वी कॉल इट एज अ अम्बिलिकल वेन. एंड इट आल्सो सप्लाइज न्यूट्रिएंट रिच ब्लड फ्रॉम मदर टू फीटस. जो न्यूट्रिएंट रिच ब्लड है यानी जो भी मदर ने खाना खाया है वो पूरा मटेरियल डाइजेस्ट होने के बाद वो सारा मटेरियल जो है डाइजेस्टेड, दैट फूड मटेरियल, रोटी अगर खाई है तो दैट स्टार्च इट गेट कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज. तो ग्लूकोज जो है स्मॉल बेबी के बॉडी में जाएगा. अगर जो मदर है उन्होंने फल खाए हैं तो फल के अंदर ज़्यादातर ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, लाइक दिस मटेरियल इज देयर. दैट मटेरियल गेट एंटर इनसाइड द स्मॉल बेबी एंड इट इज रेडियली यूज अप बाय दैट बेबी. फल खाना बहुत ही अच्छा होता है डिलीवरी के पीरियड में. हरी सब्जियां खाना बहुत ही अच्छा होता है. फैट्स यूटिलाइज करना है आपको ताकि प्रोटीन से ज़्यादा यूटिलाइज करना है उस पीरियड में. हमारे लिए नहीं खाना है, हमारे शरीर के लिए नहीं, जो स्मॉल बेबी है डूम के अंदर उसके लिए हमको खाना है. उस पीरियड में हमको भूख नहीं लगती. अब भूख नहीं लगती तो हमको जो है रोटी, अगर 2 रोटी आप खाते हैं या 1 रोटी अगर आप लोग खाते होंगे, भूख नहीं लगती उसमें, लेकिन तो स्मॉल बेबी के लिए आपको खाना है. उस रोटी को जो है 4 हिस्सों में तोड़ के रखना है. पहले तो थोड़ा जिसको हम बोलते हैं 1/4 उसको खाना है. फिर 2-3 घंटे होने के बाद दूसरी 2-3 घंटे के बाद लाइक दिस थोड़ा थोड़ा खाना है ताकि जो बेबी है उसको फूड मटेरियल जो है रेगुलर इंटरवल में जो है उसको सप्लाई हो सके और उसकी अच्छी ग्रोथ जो है हो सके. तो आपको उस पीरियड में जो है ध्यान रखना है. अगर इच्छा नहीं भी है आपकी तो भी थोड़ा थोड़ा खाते रहना है और उस बेबी को जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, दैट अमाइनो एसिड्स हैं, देन ग्लूकोज है, देन लाइक दिस द मटेरियल विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ दैट बेबी, वो हमको यूटिलाइज करना है, खाना है, उस बेबी को सप्लाई करना है थ्रू दिस अम्बिलिकल कॉर्ड, थ्रू दिस हेल्प ऑफ दिस प्लासेंटा एंड दिस अम्बिलिकल कॉर्ड. अम्बिलिकल आर्टरीज आर देयर. ये जो रेड कलर की इसमें दिखाई गई है दिस वन दैट इज अम्बिलिकल आर्टरी, इसमें नाल में होती है. एंड द अम्बिलिकल आर्टरी, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस अम्बिलिकल आर्टरी? द fetal heart pumps low oxygen containing blood, nutrient depleted blood from the fetus to the mother. यानी इसमें जो भी उसमें लो ऑक्सीजन जो उसने रेस्पायर किया है स्मॉल बेबी ने, उसके ब्लड के अंदर कम ऑक्सीजन प्रेजेंट है, वो ऑक्सीजन या नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल जो फॉर्म हुए उसके बॉडी में या दूसरे जो यूरिक कंटेंट फॉर्म हुए उसके बॉडी में, वो वापस वो बेबी में से यही नाल में से ये आर्टरी प्लासेंटा में लेके, ये अम्बिलिकल कॉर्ड ओपन्स इनटू प्लासेंटा और प्लासेंटा में से मदर का जो ब्लड है उसमें ये सब मटेरियल आता है. इन दिस वे द ग्रोथ ऑफ दैट बेबी टेक्स प्लेस ड्यू टू दिस अम्बिलिकल कॉर्ड. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ दिस in between these mother and that fetus. Now see this placenta. ये placenta है. After delivery ये placenta धोने के बाद ऐसा दिखता है. ये placenta है और ये जो umbilical cord है we call it as a नाल. छोटे बच्चे की नाड़ जो होती है वो है. This is a placenta. ये जो placenta है this is a placenta. It release HCG means this is a placenta. It act as a endocrine gland. और महिला जब गर्भवती होती है तब ये प्लासेंटा कई हार्मोन्स को, एंडोक्राइन हार्मोन्स को रिलीज करता है. फॉर एग्जांपल एचसीजी दैट इज अ ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन. सेकंड एचपीएल दैट इज अ ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन. नेक्स्ट एस्ट्रोजन, नेक्स्ट प्रोगेस्टेरॉन. एंड दिस प्लासेंटा आल्सो रिलीज
हार्मोन्स एसेंशियल फॉर सपोर्टिंग द फीटल ग्रोथ, छोटे बेबी की ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए, वो भी हार्मोन जो है रिलीज करता है। द मेटाबॉलिक चेंजेस इन द मदर एंड मेंटेनेंस ऑफ द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का काम भी ये प्लासेंटा ही करता है। दिस प्लासेंटा आल्सो रिलीज एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, देन प्रोलैक्टिन, देन दिस थायरॉक्सिन। अब हमको इन सब जो हार्मोन्स रिलीज करता है प्लासेंटा, उनमें से कुछ हार्मोन्स ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी में ही प्रोड्यूस होते हैं। ओनली देयर आर सम हार्मोन्स व्हिच ओनली प्रोड्यूस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, फॉर एग्जांपल एचसीजी, एचपीएल एंड रिलैक्सिन। दिस रिलैक्सिन इट रिलीज बाय द दैट ओवरी। तो ये प्रेगनेंसी हार्मोन्स है। विच आर द प्रेगनेंसी हार्मोन? एचसीजी, एचपीएल। एचसीजी मीन्स ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, एचपीएल मीन्स ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन, and this one we call it as that is a relaxin, which is released by these ovary. These are the hormones which released by the placenta, and these three hormones are there, they only release during the pregnancy, due to which we call it as a pregnancy hormones. Now see here, after implantation and after the three germinal layer formation takes place, immediate after implantation the inner cell mass embryo differentiate into an outer layer called ectoderm and inner layer we call it as endoderms, and mesoderm soon appears between the two ectoderms and endoderms. These three layers give rise to all tissue organs in adult. हमको ये देखना है कि ये ectoderm से कौन से organs हमारे शरीर में बनते हैं, mesoderm से कौन से बनते हैं, और ectoderm से कौन से organs हमारे शरीर में बनते हैं। फ्रॉम द ectoderm दिस लेयर, ये जो नीले कलर की जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में दिखाई गई है, दैट इज ectoderm. फ्रॉम दिस ectoderm hairs formation takes place of that baby, then nails formation takes place, नाखून बनते हैं उस स्मॉल बेबी के, then the entire skin formation takes place, then the nervous system formation takes place. mesodermal layer है, बीच वाली जो लेयर है mesodermal layer, from this mesodermal layer circulatory system formation takes place, then lungs formation takes place, then skeletal system formation takes place, then muscular system formation takes place, and from the from the endoderm, सबसे अंदर की जो लेयर है endoderm, from this endoderm complete digestive system formation takes place of that small baby, then liver formation takes place, pancreas formation takes place, and lungs inner layer formation takes place. In this way these three germinal layer is very important. These three germinal layer, that is ectoderm, mesoderm and endoderm, forms the complete body, complete that organ and organ system of that baby. So these are three germinal layers, they are very important as far as the small baby is concerned. ऐसे ये है प्लासेंटा, दिस स्ट्रक्चर वी कॉल इट एज अम्बिलिकल कॉर्ड। प्लासेंटा ऐसे डेवलप होता है यहाँ पे, इन सम वुमन यहाँ लाइक दिस, and from that umbilical cord, from this placenta, these cord formation takes place. That cord we call it as a umbilical cord. इसमें दो arteries होती है और एक vein उसके अंदर होती है। Now we will see the embryonic development after 21 days, like this that structure formation takes place on that endometrial wall. Now these pregnancy get differentiated or divided into trimesters. The first trimester is from week 1st to the end of week 12. एक पहले महीने से तो तीसरे महीने तक, like this 1 to 3 month. The second trimester is from week 13 to the end of week 26. चौथे महीने से तो छठे महीने तक. And the third trimester is from week 27 to the end of the pregnancy. ये 7वें महीने से लेके तो डिलीवरी तक ऐसे ट्रिमिस्टर में डिफरेंशिएट किया जाता है. जो डॉक्टर है वो ऐसे उसको ऐसे ट्रिमिस्टर में उसको डिवाइड करके जो है उसको चेक करते हैं फीमेल्स को. ट्रिमिस्टर फर्स्ट, मंथ फर्स्ट, ये वीक 1 to 4. दूसरा महीना यानी वीक 5वां वीक टू 8. मंथ थर्ड मीन्स वीक 9 to 13. ट्रिमिस्टर सेकंड मीन्स
चौथा महीना वीक 14 to 17। नेक्स्ट पांचवा महीना वीक 18 to 22। छठा महीना वीक 23 to 27। देन ट्रिमिस्टर 3 सातवां महीना वीक 28 to 31। आठवां महीना वीक से 32 to 35 और नौवां महीना वीक 36 to 40। यानी टोटल जो प्रेगनेंसी है ये 40 हफ्ते तक 40 वीक्स तक होती है और उसको 3 हिस्से में डिवाइड किया है, ट्रिमिस्टर फर्स्ट, ट्रिमिस्टर सेकंड और ट्रिमिस्टर थर्ड, लाइक दिस। तो हम अब इसके बाद जो है वी विल सी द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। पहले महीने में क्या क्या चेंजेस होते हैं, दूसरे महीने में क्या क्या चेंजेस होते हैं फिटस में, तीसरे महीने में फिटस के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं, फीमेल की बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं, ये हम देखेंगे। इन ह्यूमन बीइंग्स आफ्टर 1 month of pregnancy the embryo's heart is formed। embryo heart formation takes place। ये embryo heart ऐसा यहाँ बल्ज होता है ऐसा, in this structure it get a bit like this, means in 1 month that embryo heart formation takes place and it will bleed like this। the first sign of growing fetus may be noticed by listening to the heart sound carefully through the stethoscope। यानी वो हार्ट साउंड जो है वो हम सुन सकते हैं उसको स्टेथोस्कोप से, या सोनोग्राफी जब करते हैं इस दौरान तो सोनोग्राफी में हार्ट बीट जो है उसका साउंड ग्रो किया जाता है और उसको हम सुन सकते हैं। हमारा जो बेबी है उसके हार्ट बीट को हम सुन सकते हैं सोनोग्राफी जब करते हैं। हमने अगर उनको जो सोनोग्राफी करते हैं उनको अगर हमने रिक्वेस्ट किया तो वो थोड़ा हार्ट बीट का साउंड बढ़ा के आपको वो सुना सकते हैं। सो इन 1 month these changes takes place। then by the end of the 2nd month of pregnancy the fetus develop limb and the digit। 2 महीने का जो आपका fetus है उसमें ऐसे जो limbs जो है 4 limbs and this one we call it as a hand limb and this structure we call it as a umbilical cord। इस umbilical cord में ये जो रेड स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है दिस इज रेड 1 and 2 these are the arteries। ये जो 2 दिख रही है आपको ये आर्टरीज है और इसमें नीले कलर की जो है दैट वी कॉल इट एज अ वेन, लाइक दिस। सो दिस आर्टरीज एंड वेन इट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इट इज द कनेक्शन बिटवीन मदर टू दैट फिटस। जो भी माँ जो है खाना खाएगी या जो भी सेवन करेगी वो बेबी के बॉडी में जाएगा आफ्टर डाइजेशन। ये अम्बिलिकल कॉर्ड हेल्प करता है, प्लासेंटा एंड दैट अम्बिलिकल कॉर्ड एंड इन दीज पीरियड सी हियर दीज पोर्शन गेट डेवलप। जो हेड है ये पोर्शन थोड़ा डेवलप होने लगता है। इसके बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होने लगती है इन दिस एंड ऑफ दिस 2nd month। देन बाय द एंड ऑफ थर्ड मंथ 3 महीने कंप्लीट होने में जब है तब आफ्टर दैट इज अ 12 week दैट इज अ फर्स्ट ट्रिमिस्टर। मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम्स आर फॉर्म। इस बेबी के अंदर जो ऑर्गन सिस्टम है हमारे बॉडी के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, लाइक दीज सिस्टम्स दे आर फॉर्म्ड। 12 वीक का जब ये फिटस हो जाता है 12 वीक का मीन्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 3 month फर्स्ट ट्रिमिस्टर most of the major organ systems are formed। for example the limbs and the external genitalia organs are well developed। the external genitalia organ जो है वो well developed इस मंथ में हो जाता है। वो लड़का है या लड़की है सोनोग्राफी में पता लगता है, लेकिन जो सोनोग्राफी करते हैं वो नहीं दिखाते उस पीरियड में, लाइक दिस। तो आफ्टर 3 months like this changes takes place in that fetus। in this month the mother need to drink enough fluid। ज़्यादा से ज़्यादा पानी मदर ने पीना चाहिए। ये 3रा महीना जो कंप्लीट होता है उसके बाद which prevent common problems in pregnancy like hemorrhoid, then constipation and bladder that is a bladder infection। ये जो छोटी छोटी जो बीमारियां होती है जो उसके साथ जो जुड़ा हुआ ये सब जो डिसऑर्डर्स है उसकी कम होने की संभावनाएं होती है इस पीरियड में। आपकी इच्छा नहीं है फिर भी हमको क्या करना है, ज़्यादा वाटर जो है कंज्यूम करना है।
ज़्यादा पानी अगर आप पिएंगे तो उससे डाइजेशन भी अच्छा होगा, और ज़्यादा फ्लूइड बॉडी के अंदर होगा, लिक्विड बॉडी के अंदर होगा, तो वो स्मॉल बेबी जो है उसके ग्रोथ के लिए अच्छा होता है। सो मदर नीड टू ड्रिंक इनफ फ्लूइड विच प्रिवेंट दिस हेमोरॉइड एंड कॉन्स्टिपेशन एंड दिस ब्लैडर इन्फेक्शन। देन जो बॉडी के अंदर डाइजेशन प्रोसेस है वो भी अच्छी होती है और काफ़ी हेल्पफुल होता है उस पीरियड के अंदर। देन इफ चौथे महीने में क्या चेंजेस होते हैं फिटस के अंदर, देखिएगा, इन दिस मंथ बेबी विल डबल हिज वेट। ये जो स्मॉल फिटस है उसका वेट दुगना हो जाता है। एंड एड इंचेस टू हिज लेंथ लेग, नाउ क्वाइट डेवलप एंड हेड इज मोर इरेक्ट। सर है थोड़ा ज़्यादा इरेक्ट हो जाता है, वजन उसका डबल हो जाता है, ये उंगलियां जो है क्लियरली दिखने लगती है, पूरी फॉर्म हो जाती है। इस पीरियड में ही जो है बॉडी जो पैर है वो पैर में थोड़ा हल्का सा मूवमेंट जो है होना शुरू हो जाता है। ये सब चेंजेस जो है ये स्मॉल बेबी के ये फिटस के अंदर होते हैं। ऑल द सिस्टम विच आर देयर, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, और ये सब सिस्टम जो है कंप्लीटली डेवलप बेबी के अंदर हो जाते हैं चौथे महीने। और जैसे ही 5वां महीना लगता है, द फर्स्ट मोमेंट ऑफ द फिटस अपीयर इन दिस 5th मंथ। 5वें महीने में जो छोटा फिटस है, बेबी है डूम के अंदर, 5वें महीने में उसका मूवमेंट जो है जरूरी है। छोटा बेबी जो है पेट के अंदर थोड़ा मूवमेंट करता है, घूमता है, ऐसा थोड़ा हल्का सा घूमता है। ये मूवमेंट बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये मूवमेंट 5वें महीने में नहीं होता है, या मदर को ये फील नहीं होता है, या छोटा बेबी जो है ऐसे पैर से मदर के डूम को, फंडस को किक नहीं मारता है, तो उस स्मॉल बेबी के अंदर, फिटस के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, ऐसा माना जाता है। तुरंत डॉक्टर जो है सोनोग्राफी के लिए आपको जो है प्रेरित करते। सोनोग्राफी का रिपोर्ट आने के बाद में उस बेबी में क्या प्रॉब्लम है उसको फाइंड आउट किया जाता है कि उसमें मूवमेंट क्यों नहीं है, क्या उसकी ग्रोथ कम है, क्या उसके बॉडी के अंदर जो है सेल डिवीजन की प्रोसेस जो है कम हुई है, या इज देयर एनी प्रॉब्लम, या एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो एमनियोटिक फ्लूइड गर्भजल उसकी मात्रा कम हो रही है या नहीं, वो सब देखा जाता है और उसके बाद ट्रीट किया जाता है। यानी 5वें महीने में छोटा बेबी जो है उसका मूवमेंट जरूरी है। This small baby to move inside the womb. The first movement of the fetus and appearance of hair on the head are usually observed during the 5th month. Baby kick notice in some women. कुछ महिलाओं में छोटा बेबी जो है, जो सामने आया, जो बल्ज पोर्शन होता है, वो क्वालिटी है फंडस, उसको हल्का सा जो है पैर से किक करता है, दैट इज अ बेबी किक। 5वें महीने से स्टार्ट होती है। In some women it get a notice. Now in the sixth month, 6ठे महीने में क्या होता है? By the end of 24 week, that is the second trimester, the body is covered with the fine hairs. ये सब बॉडी के ऊपर बारीक बारीक जो है हेयर्स आना शुरू हो जाते हैं बेबी के बॉडी के ऊपर। Then eyelid separates. ऐसी आँख उसकी बंद होती है। 6ठा महीना जैसे लगता है उसकी आँख जो है ऐसे खुलने लगती है, और ऐसे आँख खुलती है उसकी। Then that eyelids separates and eyelashes are formed, या eyelashes जो है फॉर्म हो जाते हैं, eyelid जो है ऐसे सेपरेट होने लगते हैं। सोनोग्राफी में देखने के बाद में वो ऐसी आँख खुलती है उसकी, दिखता है ऐसे सोनोग्राफी, आँख खुलती है, बंद होती है। अभी तो काफ़ी एडवांस सोनोग्राफी हुई है। हमारे वक्त तो ब्लैक दिखता था, अभी तो 3 ड्रॉपलर मेथड्स आर देयर। उसके अंदर तो डूम के अंदर जैसा बेबी है वैसा ही हम स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। 8वें महीने में, 7वें महीने में बेबी यॉर्निंग करता है लाइक दिस। वी क्लियरली ऑब्जर्व दिस ऑल मैकेनिज्म इन दैट सोनोग्राफी। उसमें देख सकते हैं हम ये सब मूवमेंट, उसके पैर के मूवमेंट जो है उसमें हम देख सकते हैं। वहाँ पे जब सोनोग्राफी होती है तब जो मेल है, दोनों भी पति पत्नी है, अगर उन्होंने रिक्वेस्ट अगर की हमको वो देखना है उस स्ट्रक्चर अंदर से कैसे मूवमेंट करता है क्या है, तो सोनोग्राफी करने वाले आपको दिखाते हैं। तो यानी अगर उसको अगर ज़्यादा कटाला आ गया तो वो ऐसे नहीं करता, लेकिन लाइक दिस
यॉर्निंग करता है, देन मूवमेंट, उसके हाथ के पैर के मूवमेंट उसमें थोड़े थोड़े होते हुए दिखते हैं। एल्वेओलर सैक ग्रोइंग एट द टिप ऑफ द स्मॉलर ब्रांचेस ऑफ द बेबी। लंग्स जो है, लंग्स वो तो हमारे जैसे ब्रीथ नहीं कर सकता है, लेकिन क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर होता है, वो गर्भजल के अंदर होता है, लेकिन उसके दोनों लंग्स के अंदर, फॉर एग्जाम्पल वो ट्रकिया डिफरेंशिएटेड इनटू टू ब्रोंकाई, देन टू ब्रोंकाई डिफरेंशिएटेड इनटू प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्शियरी ब्रोंकस, देन एल्वेओलर डक्ट, देन एल्वेओलर सैक इज देयर। एल्वेओलर सैक की जो टिश्यू है या एल्वेओलर सैक फॉर्मेशन की प्रोसेस छठे महीने में स्टार्ट हो जाती है, एंड मिलियंस ऑफ लाइक दिस एल्वेओलर सैक formation get complete in both lungs of this small baby. Baby is more active and increase in a baby kick. 7वें महीने में बेबी किक जो है उसमें बेबी की बढ़ती है। समझ में आता है कि वो अंदर से जो उसका जो पैर है वो ज़्यादा बार मार रहा है ऐसे वो फंडस के ऊपर, समझ में आता है उसमें। Then the baby sense organ of hearing, smell and touch are developed and functional. Hearing, smell and touch ये organs है, ये fully develop हो जाते हैं। Brains also fully develop. Brain के अंदर के जो nerve cells है, that all that nerve cells they are fully well developed. यानी बेबी जो है 7वें महीने में काफी डेवलप हो जाता है। Then जैसे ही 8वां महीना लगता है वैसे बेबी किकिंग ए लॉट एंड इट कैन बी हर्ट ऑल्सो। ज़्यादा ही किक करता है 8वें महीने में स्मॉल बेबी। डॉक्टर कहते भी है, डॉक्टर के पास अगर आप जाएंगे तो डॉक्टर पूछते हैं कि दिन में से कितने बार जो है किक करता है, कितने बार अंदर से पैर मारता है, काउंट करना है। अगर वो बेबी किकिंग जो है वो जो अंदर से पैर मारता है वो काउंट अगर कम हो जाता है तो और सोनोग्राफी हमको करना पड़ता है, क्योंकि कुछ उस बेबी में प्रॉब्लम है या कुछ उसके जो फंक्शंस है वो कम तो नहीं हुए, उसकी ग्रोथ कम तो नहीं हो रही है, क्या प्रॉब्लम है उसके बेबी के अंदर, उसको फाइंड आउट किया जाता है। एज अ प्रेगनेंसी इज एन एडवांस स्टेज, 8वें महीने में ये प्रेगनेंसी एडवांस स्टेज में होती है, इसलिए इट रिड्यूसेस द बैक पेन। जो पीठ का जो पेन है, बैक पेन, वो थोड़ा कम होता है महिलाओं में। अगर वो वैसे ही रहता है तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। कीप मॉनिटरिंग द बेबी किक, मॉनिटर करना है बेबी किक को, दिन में से कितने बार किक करता है आपको काउंट करके रखना है। एंड इफ फाउंड लो, अगर वो कम होती है बेबी किक, देन नो योर डॉक्टर इमीडिएटली। आपके डॉक्टर को तुरंत उसको बताना होता है कि उसकी बेबी किक जो है पहले दिन में से 20 बार बेबी किक करता था, पैर मारता था अंदर से, अब एकदम 10 किक मारता है, तो देयर शुड बी सम प्रॉब्लम इन द डेवलपमेंट ऑफ दैट बेबी, और सोनोग्राफी से ये पता लग जाता है। जैसे 9वां महीना लगता है वैसे बाय द एंड ऑफ दिस 9 मंथ, जैसे 9 मंथ पूरे कंप्लीट हो जाते हैं उस बेबी के, बाय द एंड ऑफ द 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी द फीटस इज फुल्ली डेवलप्ड एंड इज रेडी फॉर डिलीवरी। अब ये जो फीटस है ये फुल्ली डेवलप हुआ है। Fully developed means the digestive system, the respiratory system, the excretory system, the circulatory system, nervous system, the skeletal system, all the cells and the tissues, they are functioning in the body. सब organ जो है organ system functional हो जाते हैं उस बेबी के बॉडी के अंदर के। टोटल जो है उस स्मॉल बेबी जो है शेप ले लेता है, वो टोटल उसके बॉडी के स्ट्रक्चर जो है फुल्ली डेवलप हो जाते हैं। अब इसके बाद ये स्मॉल बेबी जो है ऐसे इन्वर्टेड पोजीशन में होता है। नाउ सी हाउ द fetus step by step it develop. This one is the umbilical cord, and in these 1 month, 2 month, these 4 leaves and handling formation takes place, and such a movement takes place in the fetus, and slowly that organ formation takes place, then the head development takes place in the womb, and the baby full growth takes place in 9 months, and after 9 months this portion of the baby, that head push the cervical region and release the signal for delivery, and then how the delivery takes place we will see. Now see parturition. The average duration of human pregnancy is about 9 months.
which is called the gestation period. Vigorous contraction of the uterus at the end of the pregnancy causes expulsion, delivery of the fetus. This process of delivery of the fetus, childbirth, is called parturition. Means a delivery of that child, we call it as a parturition, like this. After 9 months or 9 days, this process get a start, and the small baby it get a deliver. We call it as a parturition. Fetal ejection reflex, it is created by that small baby. Parturition is induced by a complex neuroendocrine mechanism. The signals for parturition originate from the fully developed fetus. This is a fully developed fetus originate this signal, and the placenta, which induce the mild uterine contractions called fetal ejection reflection. Means that a placenta which is there, and that a small baby push the cervical region, and the placenta release the signal. Then the pituitary gland release the hormones. That hormones we call it as what? That oxytocin hormones. And the uterine muscles which are there. Uterus it is made up of 3 walls. पेरीमेट्रियम सबसे बाहर की वॉल होती है, मायोमेट्रियम मिडल वॉल होती है, और एंडोमेट्रियम सबसे अंदर की वॉल होती है यूटेरस की। मायोमेट्रियम जो मिडल वॉल है यूटेरस की, इट इज मस्कुलर इन नेचर, उसमें मसल्स होते हैं, और ड्यू टू दैट ऑक्सीटोसिन दिस मसल्स स्लाइटली कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। उसमें कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की जो प्रोसेस है, द पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन process of these muscles induced due to these signal. कड़ा आना बोलते उसको, कड़ा ये नहीं, like this. And that we call it as a fetal ejection reflex. उस small baby को बाहर निकलना है, उसके signals है, उस फीमेल को पता लग जाता है, उसका जो डूम है, उसका जो that uterus जो है, वहाँ जो रीजन है, वो थोड़ा पेन करने लगता है, दुखने लगता है, और कॉन्ट्रैक्शन जो है फील होते हैं मदर को। These triggers release of these hormones, we call it as oxytocin hormones from the maternal pituitary. Pituitary gland, that is the master gland of our body. वो फीमेल का जो मास्टर ग्लैंड है, that is a pituitary gland. रिलीज उसका जो एंटीरियर जो लोब है, the posterior जो लोब है, रिलीज hormones known as oxytocin hormones, and these contraction of the uterine muscles get start. Oxytocin, we'll see the function of this oxytocin. Oxytocin act on the uterine muscles. Which muscles? The muscles which are present in the myometrium wall. Oxytocin act on the uterine muscles and causes stronger uterine contraction. Strong uterine contraction takes place, which in turn stimulate further secretion of oxytocin. जैसे जैसे स्टिमुली बढ़ता जाता है, जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता जाता है, और ऑक्सीटोसिन जो है रिलीज वहाँ से होता है, रिलीज द सिग्नल। द स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स बिटवीन द यूटेराइन contraction and oxytocin secretion continues, resulting in stronger and stronger contraction. ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन जो है स्टार्ट होता है। The peristaltic contraction and relaxation takes place. जो मसल्स है वो भी कोशिश करने लगते हैं उस बेबी को पुश करने में। बेबी अंदर से जो है वो भी खुद कोशिश करता है बाहर निकलने में। वहाँ नर्स खड़ी होती है, वो भी पुश करती है बेबी को, पीछे से पुश करती है उसका सर बाहर निकलने के लिए। डॉक्टर्स होते हैं वहाँ पे, ये सब नेचर जो है वो टोटल सब मिलके जो है कोशिश करते हैं डिलीवरी के पीरियड में। एंड this leads to expulsion of the baby out of the uterus through the birth canal, and parturition takes place and delivery takes place there. First stage जो डिलीवरी की होती है वो डायलेशन स्टेज कही जाती है। लास्ट फॉर अबाउट 12 आवर्स, 12 घंटे का ये पीरियड होता है जिसमें सर्विक्स डायलेट होती है। सर्विक्स डायलेट होने के बाद एक स्टेज कहा जाता है, उसमें सर्विक्स अगर डायलेट होती है तो पीकॉक स्टेज जो है उसको कहा जाता है। उसमें थोड़ा बेबी का सर जो है दिखने लगता है, सर्वाइकल
रीजन में से। फर्स्ट स्टेज दैट इज अ डायलेशन, लास्ट फॉर अबाउट 12 आवर्स, 12 घंटे की ये स्टेज है। पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस वॉल बिगिन, सर्विक्स एक्सपांड, सर्विक्स जो है एक्सपांड होता है उसमें। एमनियन एंड कोरियन रप्चर, जो एमनियन एंड कोरियन है जिसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, गर्भजल भरा हुआ है, वो रप्चर हो जाती है। रप्चर एंड एमनियोटिक फ्लूइड passes. Now this is second stage, also called expulsion stage, last for 20 minutes to 1 hour, 20 minutes to 1 hour ये फेज चलती है। Baby get delivered in this phase, then umbilical cord is ligated at 2 places close to the baby, यानी नाभि से थोड़ा दूर 2 जगह क्लिप्स लगानी होती है अम्बिलिकल कॉर्ड को, और उसके दोनों के बीच में उसको कट देना होता है अम्बिलिकल कॉर्ड को, माँ से छोटे बेबी को अलग करना होता है। दैट इज द सेकंड स्टेज known as expulsion, and third that is the placenta stage, last for 10 to 45 minutes. Here uterus begins to shrink, placenta, then umbilical cord and the fetal membrane are expelled out in these 10 to 14 minutes. That is the third, we call it as a placenta stage. ये सब स्ट्रक्चर जो है that is a placenta, umbilical cord and the fetal membrane वगैरह, ये सब due to the shrinkage of that uterine wall, all these structure expel out after birth. प्लासेंटा भी जो है वहाँ से डिटैच होता है, प्लासेंटा भी पुल किया जाता है, प्लासेंटा निकाला जाता है, फिर उसको क्लीन किया जाता है, साफ किया जाता है पूरा। Like these it takes place in the influence of these hormones, we call it as oxytocin. Here stem cells are there, the inner cell mass which is there, from that the inner cell mass which is there, that inner cell mass are totipotent in nature, and from this inner cell mass stem cells formation takes place। और जब भी डिलीवरी होती है उस दौरान उस स्मॉल बेबी के स्टेम सेल्स विच इज प्रेजेंट इन द प्लासेंटा, वो स्टेम सेल्स को अगर हम सेपरेट करेंगे और उस स्टेम सेल्स को कलेक्ट करके प्रिजर्व करेंगे, तो इस स्टेम सेल्स को प्रिजर्व करने के बाद एक बैंक है, वी कॉल इट एज अ स्टेम सेल बैंक। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी यूजफुल फॉर दैट स्मॉल बेबी। वो छोटा बेबी जो है डिलीवर होने के बाद अपना जीवन जब भी व्यतीत करेगा, उसके पूरे जीवन काल में अगर उस ऐसा ना हो, लेकिन अगर उसका लीवर खराब हो गया या उसके किडनी में कुछ प्रॉब्लम आता है या उसके बॉडी में कुछ ऑर्गन में कुछ अगर प्रॉब्लम आता है या स्किन जल जाती है, उसकी नई प्लास्टिक सर्जरी से स्किन अगर लगानी है, दिस स्टेम सेल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर डिलीवरी के पीरियड में ही स्टेम सेल्स को निकाल के अगर हम स्टोर करेंगे और उसको स्टेम सेल बैंक जो बॉम्बे में स्थित है वहाँ उसको प्रिजर्व अगर हम करेंगे, उसका फॉर्म अगर भरेंगे हॉस्पिटल में ही उस बेबी डिलीवर होने के बाद, तो उस बेबी के स्टेम सेल्स को स्टेम सेल बैंक में प्रिजर्व किया जा सकता है। और उसके जीवन काल में अगर कुछ ऐसी घटनाएं हुई तो उसके बॉडी के अगर कुछ ऑर्गन अगर ठीक से काम नहीं कर रहे, तो दीज स्टेम सेल विच आर टोटिपोटेंट सेल्स एंड सेल्स ऑफ दैट बेबी, फ्रॉम दैट सेल्स स्टेम सेल्स इन फ्यूचर में हम मसल सेल्स बना सकते हैं, फैट सेल्स को हम बना सकते हैं, बोन सेल्स को हम बना सकते हैं, देन उसके ब्लड सेल्स को बना सकते हैं। अगर ऐसा ना हो, लेकिन अगर ब्लड कैंसर हो जाता है, बार बार ब्लड को रिप्लेस करना पड़ता है, कौन देगा इतना ब्लड? लेकिन उस बेबी के अगर स्टेम सेल बचपन में ही जब वो डिलीवर होता है तभी अगर प्रिजर्व कर दिए गए माता पिता के द्वारा, तो उससे ब्लड सेल्स को भी फ्यूचर में बनाया जा सकता है। आरबीसीज को अलग बनाया जा सकता है, डब्ल्यूबीसीज को बनाया जा सकता है, प्लेटलेट्स को बनाया जा सकता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हमको प्रिजर्व करना है हमारे बेबी के स्टेम सेल्स। जैसे ही डिलीवर होता है फॉर्म भरना है स्टेम सेल प्रिजर्वेशन का। ये स्टेम सेल से अगर नर्वस सेल्स की आवश्यकता है उस बेबी को उसके पूरे जीवन काल में, तो बड़ा होने के बाद भी तो नर्वस सेल्स भी बना सकते हैं, इपिथेलियल सेल्स भी हम उस
स्टेम सेल से बना सकते हैं, इम्यून सेल्स भी बना सकते हैं, सेक्स सेल्स भी बना सकते हैं. लाइक these stem cells are very useful because these stem cells are totipotent cell, means these cells has capacity to regenerate. उसमें कैपेसिटी होती है रीजनरेशन की, इसलिए उससे कोई भी सेल, कोई भी उसके टिश्यू, हम लोग उस बेबी के उसके जब वो बड़ा होगा उस दौरान अगर कुछ प्रॉब्लम उसके शरीर में आते हैं तो उसको इस स्टेम सेल से हम उसका प्रॉब्लम रिलीज कर सकते हैं. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिजर्व दीज स्टेम सेल्स लाइक दिस. द प्लासेंटा इज अ टेम्पररी ऑर्गन दैट कनेक्ट द डेवलपिंग फीटस वाया द अम्बिलिकल कॉर्ड. यह है प्लासेंटा और दिस वन इज द अम्बिलिकल कॉर्ड. यह है नाड़, दैट इज द अम्बिलिकल कॉर्ड. टू द यूट्राइन वॉल टू अलाउ न्यूट्रिएंट्स अपटेक, thermoregulations, waste elimination and gas exchange via the mother blood supply, to fight against the internal infections and to produce hormones which supports the pregnancy. These all are the functions of this placenta. ये placenta और नाल जो है वो काटने के वक्त ऐसे टाइप का जो है डिवाइस यूज करते हैं, क्लिप्स, और फिर बीच में से नाल को जो है काटते हैं. आफ्टर डिलीवरी होने के बाद में ये जो डिलीवर हुआ, जस्ट डिलीवर हुआ ये बेबी है, इस बेबी को थोड़ा सा पोंछा जाता है, उसको पूरा साफ किया जाता है, धोया जाता है और उसके बाद में जो है उसको मदर के पास में रखा जाता है. और उसके बाद देन लैक्टेशन दैट प्रोसेस स्टार्ट. माँ का जो पहला दूध है उस बच्चे को पिलाना बहुत जरूरी है. माँ का जो पहला दूध होता है वो पीले कलर का दूध, वी कॉल इट एज अ कोलेस्ट्रम. हम देखेंगे lactation. The mammary gland of the female undergoes a differentiation during pregnancy and start producing milk towards the end of the pregnancy by the process called lactation. ये जो mammary glands है, mammary glands में these are the mammary lobe. ब्लड में से यहाँ दूध जो है प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं. Then it comes into the mammary annulus. From that mammary annulus it comes into the mammary duct, into the ampulla, into this lactiferous duct, और निपल से जो है ये दूध जो है स्मॉल बेबी उसको पीता है. Like this feeding takes place. Now see here, colostrum. The milk produced during the initial few days of lactation is called colostrum, which contains several antibodies absolutely essential to the develop resistance for the newborn babies. Breastfeeding during the initial period of infant's growth is recommended by doctor for bringing up of the healthy baby. ये कोलेस्ट्रम जो है, जो माँ का पहला दूध जो होता है पीले रंग का गाढ़ा दूध, ये बच्चे को पिलाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि माँ के शरीर में, माँ के ब्लड में प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज जो बन जाती है, जो अलग अलग बीमारी से फाइट करती है, ऐसी एंटीबॉडीज बनती है, वो पहला दूध जो होता है माँ का उसमें प्रेजेंट होते हैं. एंड दीज प्रिपेयर एंटीबॉडीज विच इज प्रेजेंट इन द कोलेस्ट्रम. उस बच्चे को पिलाना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि जस्ट वो अभी नए दुनिया में आया है और उसके इर्द गिर्द जो है आजू बाजू में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट. इन दिस लैक्टेशन, दिस कोलेस्ट्रम, इट इज अ इम्पोर्टेंट टॉपिक. कोलेस्ट्रम ये माँ का जो है पहला दूध होता है, ये थोड़ा हल्का सा पीले रंग का होता है. इसके अंदर these प्रोटीन्स आर प्रेजेंट, दैट इज अ कैसेन एंड इज अ लैक्टाल्ब्यूमिन. फैट की मात्रा इसमें कम होती है. 2 से 3 दिन तक ये जो शुरू में ये जो है कोलेस्ट्रम जो है प्रोड्यूस होता है. माँ का ये पहला दूध जो है बच्चे को पिलाना बहुत ही जरूरी है. इसलिए जरूरी है क्योंकि माँ के बॉडी में, ब्लड में उस दौरान जो है प्रिपेयर एंटीबॉडीज, मीन्स सच प्रोटीन्स, एंटीबॉडीज फॉर्मेशन टेक्स प्लेस विच फाइट अगेंस्ट द डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म. रोग प्रतिकार शक्ति जो है उस स्मॉल बेबी की बढ़ाने का काम करते हैं ये प्रिपेयर एंटीबॉडीज. और ये एंटीबॉडीज इतने महत्वपूर्ण है कि जो छोटा बेबी है जन्म लेने के बाद में जहाँ पे भी उसको रखेंगे, हॉस्पिटल या घर में, जिस कपड़े पे रखेंगे वहाँ कहीं ना कहीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, विच आर द कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिससे कॉमन बीमारियाँ होती है. बैक्टीरिया, वायरस, फंगस एंड लाइक दिस स्पोर्स आर देयर विच इन्फेक्ट यूर बेबी. और उस बेबी के बॉडी में शुरू में प्रतिकार शक्ति, रोग प्रतिकार शक्ति नहीं होती. और माँ का जो
जो पहला दूध जो है कोलेस्ट्रम, वो अगर उसको पिलाया गया तो उसके शरीर में प्रिपेयर एंटीबॉडीज, बनी बनी हुई एंटीबॉडीज आ जाती है, विच फाइट अगेंस्ट द डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। इससे आपका बेबी जो है अलग अलग बीमारियों से प्रोटेक्ट होता है। इसलिए माँ का पहला दूध जो है वो पिलाना बहुत ही जरूरी होता है। माँ का जो दूध है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटीन इज प्रेजेंट, कैसेन, लैक्टोअल्बुमिन। नेक्स्ट फैट इज प्रेजेंट। नेक्स्ट शुगर, that is a lactose is present. Next, that is a various vitamins are present. Then various mineral salts are present, magnesium, calcium. Then we call it as iron. Then zinc, magnesium, boron. So many like these mineral salts, they are present in these milk. Then plenty of water is present, which is very important for the digestion of that baby. Then this milk is poor in iron content. Then a small quantity of vitamin C is present in this milk. Then by this milk, by this content, by this weight gain 25 to 30 ग्राम पर डे, 25 से 30 ग्राम तक पर डे उस बेबी का जो है वेट जो है बढ़ते रहता है। इतना इंपॉर्टेंट ये कंटेंट है। देन इट प्रोटेक्ट फ्रॉम इंटेस्टिनल एंड अदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन। जो इंटेस्टिनल, जो बाहर से अगर दूध अगर हमने पिलाया तो उसमें से बैक्टीरिया जाने की संभावनाएं हैं और उससे इंटेस्टिनल एंड अदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की संभावनाएं होती है। इसलिए छोटे जो बेबी है उनको 6 महीने तक जो है माँ का ही दूध पिलाना चाहिए। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन वन टॉपिक इज देयर, दैट इज अ सीजरिन। सुनते हैं आप लोग सीजरिन के बारे में। कब किया जाता है सीजरिन? जब वो बेबी इन्वर्टेड पोजीशन में होता है, उसका सर सर्विक्स नीचे की तरफ होता है और बाकी उसका जो बैक साइड है वो ऊपर में ऐसे होता है डूम के अंदर। तो उसका सर जो है उससे सर्विक्स को जो है वो स्टिमुली करता है, उसको निकलना होता है बाहर, इसलिए। बट इस दौरान जो है डिलीवरी के प्रोसेस के दौरान बाय चांस या सोनोग्राफी करने के बाद में अगर अम्बिलिकल कॉर्ड उस बेबी के गले में ही ऐसा अटक गया हो तो वैसे बेबी को डिलीवर करना थोड़ा, यानी वो बेबी के इसके लिए जीने के लिए थोड़ा यानी डिलीवरी में वो ऑब्स्टेकल होता है। ऐसे केसेस में जो है सीजरिन को जो है हम लोग सीजरिन की जो है किया जाता है। या एट द टाइम ऑफ डिलीवरी इफ दैट बेबी इट मूव लाइक दिस, वो अगर ऐसा मूव हो गया, उसका जो हेड रीजन है, उसका जो सर है वो वहाँ से शिफ्ट हो गया और वो ऐसा जिसको बोलते हैं आड़ा होना, ऐसे अगर दूसरे पोजीशन में अगर आ गया तो फिर वो बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि वो खुद ही कोशिश करता है बाहर आने की। इन सच ए कंडीशन सीजरिन दैट ऑपरेशन गेट क्रिएटेड, ऑपरेशन जो है उसमें किया जाता है, जिसमें डूम के ऊपर, फंडस के ऊपर कट देके वहाँ से जो है बेबी को डिलीवर किया जाता है, वहाँ से बेबी को निकाला जाता है। दैट इज अ सीजरिन। इन सम स्पेशल कंडीशन ओनली that cesarean operation get conducted. Okay dear viewers, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसको शेयर कीजिए। आप जो है आपके दोस्तों में इसको शेयर करने की कोशिश कीजिए और ये अल्टीमेट बायोलॉजी जो है इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो को बनाने के दौरान अगर गलती से अगर कुछ बातें इधर उधर अगर निकल गई होगी तो I am very sorry for that. Thank you.